ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹਸਾਨੀ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦੀਲ ਬਰਲਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ ਹਯਾਤੇ ਈਸਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਬਕਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਗਦਾ ਲਾਨਤ ਭੇਜ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਲੜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਓ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਰੈਲਵੀਆਂ ਦੀ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰਾ ਹਸਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ किस लिए जाओगे? किस लिए जाओगे किस लिए? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਅਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਲਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਲਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਹਸਾਨੀ ਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ। वो ना असकानी में एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पे और झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो मैं यही बता रहा था अमन भाई को कि सुबह इन्होंने कोई बात की, राना काशिफ साहब जो है ना हमारे, वो तो मैंने सुन लिया। जी मैंने सुन लिया। इल्ज़ाम क्या लगा रहा है? वो असल में जो मैंने बात की ना वो उसका उल्ट कह रहे हैं। मतलब मैंने कहा था कि अल्लाह के नबी का साया है, वो कह रहे हैं कि बिलाल ने कहा था साया नहीं है। और सुबह भी जब उन्होंने ये बात की ना तो मैंने कहा तुम रिकॉर्डिंग मौजूद है तो तुम रिकॉर्डिंग पे ये बात रिपीट कर दो। अगर मेरे मुंह से ये बात निकलवा दो तुम रिकॉर्डिंग में तो मैं गलत हूँ, और अगर ना निकले तो फिर तुम। मैंने कहा फिर मैंने उसको ये मैंने कहा मैं जूते मारूंगा तुम्हारे सर पे। ये बात मैंने की थी। तो अलीम साहब से जब मैंने दलील मांगी थी ना ये वाली कि ये बरेलवियों का बुनियादी कीदा है तो अलीम माइक बंद कर गया था। 1 घंटा उसने माइक नहीं ऑन किया, 1 घंटा। और फिर जब पखाने और ये वाली बात पे तो मैं आया ही ना, इस पे तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा इमाम जो हैं हमारे 4 इमाम हैं, चारों इमामों की अपनी अपनी राय है, वो उन्होंने इज्तिहाद किया। मुझे तुम लोग ये दिखाओगे कि तुम लोगों के बुनियादी अकायद डिफरेंट है। मैंने कहा मुझे ये दिखाओगे। फिर यही बातें होती रही हैं। लेकिन अब जो बात है बिलाल साहब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी जब आप बयान कर रहे थे ना तो बीच में आपने गलती से कह दिया कि उनका साया नहीं था, तो वो काफ़ी देर आप वो करते रहे। तो वो मेरा हो सकता है गलती से आपने वो कह दिया हो तो उन्होंने रिकॉर्ड किया हो तो नहीं कहा कल नहीं कहा। अच्छा, एक दफा भी नहीं कहा, गलती भी नहीं हुई। चौहान साहब असल में जब आपको 4 से 5 आदमी एक दफा आपके ऊपर जमघटा, बताओ क्या कहा था। जो मेरा पहला दावा होगा वही माना जाएगा ना तारक साहब। जो मैंने पहली बात नहीं मैंने पहली बात आपने कह भी दिया, जब आप अपना सही अकीदा बयान करें तो बस वही लिया जाएगा। हाँ। और अगर मेरा ये दावा है तो फिर मैं हदीस किस चीज़ की सुना रहा हूँ अभी, अम्मी आयशा वाली। हाँ नहीं ये फ्रॉड कर रहे हैं, कोई मिर्जाई फ्रॉड ही कर रहे हैं। मैंने तो कहा था, मैंने कहा रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग निकालो। रिकॉर्डिंग में अगर ये बात सामने आ जाए तो मैं गलत, अगर ना आए तो मैं कहा अलीम साहब तुसी मैनूं हुण दलील लिया के दोगे बरेलवियां दे बारे च। अलीम साहब ने माइक बंद किया ते भज गए सीगे। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ।
अच्छा अली बिलाल भाई, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आपने ये कहा है कि साया नहीं था, ये कौन है? 1122 है या कौन है? कौन ये प्रोपेगेंडा कर रहा है? ये अलीम और ये अहमद नहीं अली हो- भाई जानते हैं, अलीम और नहीं होगा। हसैनी। हुसैनी भी नहीं होगा, अलीम भी नहीं होगा। जान जाए इस अस्कानी तरह भाई के सुबह ही उधर ही बात हुई है, ये बात बात उनकी सुनिए। ब्रॉड पे हुई है सुबह। मैं जानता हूँ, मेरी बात सुनिए। ये जो प्रोपेगेंडा इस तरह के करते हैं, बात को बदल देते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, ये है 1122। समझ रहे? ये उधर था, उस ब्रोड में था? उस वक्त नहीं था ये, नहीं, उस वक्त ये नहीं था। बहरहाल हो सकता है इस नीचे तरह के- हो, लेकिन पैनल हाँ, पे नहीं नीचे। था। हाँ, तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान गलती से अगर कह भी दिया तो क्या है? ये मुझे मालूम नहीं था, मैंने यही सुना हुआ था। असगानी भाई या मुझे मेरे मुंह से इतना निकल अपने गया आप पे था। एतमाद है कि मैंने ये बात नहीं की। मैंने कहा रिकॉर्डिंग निकलवा लो, अगर ये बात निकल आए तो मैं झूठा हूँ। मैंने इतनी बड़ी बात मेरे भाई बिलाल भाई, लेकिन वो आपकी अभी बात आपको नहीं मेरे मानेंगे, भाई क्या समझ करेंगे नहीं आप? आ रही। अभी आपने इधर भी मेरे ख्याल में एक दो दफा उलट, अभी आपको मुझे अभी भी मुझे मेरे नहीं समझ मुंह से आई। निकला ये आप कल क्या जो कह रहे कल हैं, की क्या जो नहीं चाह, गुफ्तगू मुझे है अभी ना, तक पता नहीं एक चला। मिनट एक मिनट एक मिनट, कल की जो गुफ्तगू है ना इनकी, वो मैंने सुनी ये है। बड़ा इशू है इन्होंने नहीं कहा, ये अभी वहाँ पे ये बात नहीं हो रही। अभी मैंने थोड़ी सी उनकी गुफ्तगू सुनी है, वहाँ ये बात नहीं हो रही कि इसने क्या कहा क्या नहीं कहा। वो बस एक दूसरे को वैसे दाद दे रहे हैं बिला वजह ही, ना कोई हवाला, ना एक दूसरे को दाद दे रहे हैं कि वाह वाह वाह। बल्कि गलत बात मौलवी वड़ैच ने ये की थी कि हाँ, साल में एक दिन आता है कि जिस दिन बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो उसका साया नहीं होता, वो एक दिन है। बाद में उसने सोचा कि मेरे से चवल मारी गई है, फिर उसने कहा नहीं नहीं, वो एक दिन में एक इतना का टाइम आता है, थोड़ा सा लम्हा ऐसे होते हैं कि जब सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो उसको साया नहीं, फिर वो बैतुल हरम शरीफ का जो है ना वो साया नज़र नहीं आता। बाद में एक दूसरे को कवर अप कर रहे थे। ये चवल मारी थी मौलवी वड़ैच ने, ये उसकी अपनी बात है। बहरहाल ये जो बात कह रहे हैं ना कि गलती से, मैंने वो काफ़ी इनकी लंबी चौड़ी सारी गुफ्तगू सुनी है, उसमें कोई ऐसी बात इनके मुंह से गलती से भी नहीं निकली कि हाँ 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 नहीं ऐसा है। ये इन्होंने यही मौक़िफ़ रखा है कि मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है, और बाकी फ़ुरूई इख्तलाफात हैं। ये बात ठीक है, मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है, और बल्कि इसके बाद मैंने इनके ये भी कहा था कि हम वहाँ नहीं जाते, इस तरह की उनसे गुफ्तगू करते ही नहीं है इस ब्रॉड पे। तो बहरहाल ये जो बात कह रहे हैं गलती से निकला है या इनसे कोई लफ्ज़िश हुई है, ऐसा कोई जो जुमला इनके मुंह से नहीं निकला। मैंने बड़ी बगौर इनकी गुफ्तगू को सुनता रहा हूँ मैं। तो दूसरी है कि कुछ मुसलमानों का अकीदा है कि उनका साया नहीं था। ये तो हम सुनते रहते हैं हर रोज़। तो मेरा मतलब कि वो उनका अकीदा है, उनकी मर्जी है। तारिक चौहान साहब मेरी बात सुने। बिलाल भाई, मेरी अकीदा- बात सुन लीजिए आखिरी। जी उस्ताद। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको आप लेकर मतलब आप परेशान हो कि क्या पता नहीं मैंने कहा नहीं। ये दिन दहाड़े इल्ज़ाम लगाते हैं हम लोगों को, कहीं इल्ज़ाम लगाए हैं। असगानी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 0.00001% भी परेशानी नहीं है, फिर आप क्यों अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हैं? छोड़ दीजिए ना। वहाँ देखें, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है, बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ अच्छी बात होगी नहीं। थोड़ी आपसे बात करेंगे, आपको बात करने देंगे नहीं, फिर जो है गाली गलौज तक बात आ जाएगी। वो हुसैनी साहब ये करते हैं। मैं भी जाता था पहले वहाँ पे, जब भी गया कल हुआ पता है गाली क्या गलौज मेरे साथ? ही हुआ। कल ऐसा हुआ है जब गाली ये नहीं बात दी कर रहे ना, थे ना, मैंने गाली तक नौबत आने दी है। मैंने मेरे होते उन्होंने गाली नहीं दी। गाली देते तो फिर मुझसे वो जवाब सुन लेते। बहरहाल आप परेशान ना हो, अगर आपने नहीं, कोई इल्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह। लगाया तो अच्छी बात है। ये आप पहला शख्स नहीं है जिस पे इल्ज़ाम लगाया, ठीक है भाई। कल जब ये बात हो रही थी ना इनकी, तो साया के बारे में बात हुई, तो उसके बाद फ़ौरन जो है ना जंप किया लीम ने पखाना वाली बात पे, पीर अफजल साहब का हवाला देकर। जब उधर उसने जंप किया तो वहाँ पे इस मौजू पे बात होने लगी। उसने कहा जी ये उनका बुनियादी से भी ऊपर का अकीदा है। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, आप इसकी दलील दे दें कि उनके अकायद में मौजूद है। मुसलमानों के किसी भी जमात के अंदर ये ऐसा अगर अकीदा पाया जाता है बुनियादी या बुनियादी से ऊपर, मुझे उसकी दलील दे दें। वो आएँ बाएँ शाएँ करते 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 माइक उसने म्यूट कर लिया बीच में, आपको पता है ना। तो एम्बुलेंस आती है, सैनी साहब ने आके कहा नहीं 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 इंज करने हैं। ज़ियाउल हक ने कहा सी कि जी 13 ते 14 की दरमियानी शब तो इतलाक होते होएगा, उस तो फिर मतलब उनको पता ना जैसे घुमा वो जी पिछले जी गल हो गई उन्होंने छड़ दियो, नवीं समी करो, दोबारा असी मौजू तो आ जाने जी साया है कि नहीं है। मतलब वो जब उन्होंने देख लिया कि अब अलीम जो है ना वो फंस गया, अलीम के पास जवाब नहीं बन पा रहा, उसको कोई बात नहीं करनी आ रही, फिर उन्होंने उसको एम्बुलेंस किया
उसको कवर अप किया और फिर दोबारा फिर मौजू को डाइवर्ट किया। फिर अलीम बाकी ये सही कह रहे हैं कि उसने 1.5-2 घंटे माइक ही नहीं ऑन किया, उसके बाद फिर वो चूँ चाँ करते हुए निकल आया। बहरहाल ये कोई इतनी कोई ख़ास बात भी नहीं है, इस पर वो करते रहते हैं। वो अभी आप ट्रूथ सीकर आएगा, बेइज्जत होकर जाएगा, बाद में कहेगा देखा फिर मैंने आपको चुप करवा दिया था ना, आप मान गए ना। तो ये इनका तरीका कार है, इसको छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। ये हुसैनी साहब की बरात का जिक्र कर रहे हैं। अब वहाँ गाली नहीं होती भाई, अब क्योंकि ये तमाम दोस्त जो हैं गाली ग्रुप वहाँ ब्रिगेड आता नहीं है, तो वहाँ बिल्कुल सुकून है भाई। अब बिल्कुल कोई गाली शाली बल्कि ढूंढने को भी नहीं मिल रही अब गाली। फुरकान ने छोड़ दी गाली देनी, माफी मांग ली है। ठीक बंदे दे पुत्र बने नज़ीर साहब। हाँ नहीं वो बड़ी उधर अब साफ माहौल है वहाँ पे, काफी अरसे से गाली नहीं नज़ीर साहब हमारे उधर ना जाने के बाद, हमारे उधर गाली ना बंद हो जाने गई के है। बाद कोई 8 बार मर जाइए उधर लड़े आपस में लड़े और आपस में गालियां दी हैं इतनी बुरी वीडियो नहीं, कोई चाहिए, नहीं, दे बिल्कुल। देता हूं। आपस में लड़ पड़े हैं। हुसैनी साहब ने वो रोज लड़ रहे होते हैं, वो क्या ना मर जाइए। नज़ीर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने बल्कि मशवरा उधर ही दिया उस था। दिन ना वो अन्ना मोची जो मुबशर है, अन्ना मोची वो जो मुबशर है, वो उधर ही बैठ के तो बुला रहा था उसको फेवरेट को, आ इधर आके जवाब दे, आ ऊपर आ इधर आके जवाब नहीं दे। नहीं वहाँ तो कोई, अब मैं तो कहा अभी जो बैठक कितना अरसा हो, जब से आप लोगों ने वहाँ जाना बंद किया गाली बंद हो और गई। नज़ीर साहब सीरियस तो कह रहे हैं, एक सुकून तो हुआ, एक बरात पे थोड़ा सुकून हुआ कि गालियों से महफूज हो गई वो बरात। चलें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, हम हाँ, ये आपका शुक्रिया अच्छे अदा भाई। करते हैं। अच्छा सुनो, अगर यहाँ भी कोई आपका गाली शुक्रिया ना अदा हो तो करते हैं। अच्छी बात है, मसला नहीं किसी अगर बरात तुम में भी सुन भी गाली तो ना ले हो ना, तो हमें चूं ना किया जाए करें, पूरी बात सुना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, हमने वहाँ पे जाना छोड़ा और आपने अंबिया और असहाबे कराम को गाली गलौज करना छोड़ दिया। अब आप नहीं देते वहाँ पे, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ हमारे जाने से आप जैसे शातिम रसूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करें और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करें। हमारे जाने से अगर आप गुस्ताखी करते तो हम वहाँ नहीं जाते, इसीलिए तो हमने जाना छोड़ दिया, क्योंकि हम नहीं जाते तो आप अंबिया पर नहीं भौंकते, तो इसलिए हम नहीं जाते। ठीक है, अच्छी बात है। हम नहीं इसलिए नहीं नहीं ये जाते। तो आप बहुत लोग अच्छी भौंकते थे ना, उधर से भौंकना आपका बंद हो गया आप लोग। देखें जो ये कुत्तों की बात तरह वो करता है, वो तो आपको आप पता ये ही है ना। देखें, अब वो बात बरेली ये भी है, करते हैं ना, कुत्तों को इसलिए कहा हम कुत्तों नहीं की तरह जाते, भौंको, वहाँ बस ये पे बात है। वहाँ पे माने जाना इसलिए बंद कर दी। वो बरेलवियों को कहा गया सारे कुत्तों की तरह भौंके, एक मिनट वो बात आप कर रहे हैं, वो तो आपकी बरकत है भौंकना भी कुत्तों की एक तरह। मिनट गौस पा के कुत्ते हैं सारे आप लोग। धीरे चलो हाँ जी, नज़ीर हाँ साहब जी। एक मिनट रुक भी जाया करना यार, फिर तुसी आपे नहीं उसने गाली दी है ना, मैंने कहा गालियों से रुक जाओ, इसने गाली दी। ਕੋਈ ਬੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਰਾਤੀ ਕੱਲ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਗੁੰਬਦੇ ਖਜ਼ਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਕਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਇਸਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਔਰ ਬਰੌਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਮਰੂਫ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਣਾ ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਰੌਡ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪੀਰ ਇਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਰਾਣੇ ਆਏ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਣੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਟੋਕ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇਸ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਡੀ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਜ਼ਾਹਤ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਖਾਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੜ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਕੀਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਨਵੀਦ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਏਡੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਵੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਬਕਤ ਲਸਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਕਤ ਲਸਾਨੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਬਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਮਦਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅਗਰ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਲਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਡੇ ਸਾਇੰਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਤਾਇਦ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਰੁਲ ਫਤਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੈ
ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਔਰ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕੌਲ ਤੋਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 2-3 ਹਵਾਲੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ ਹਦੀਸ ਸੀ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਅਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਫਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੇ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ज़ईफ रवायतां ने ते ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ आमिर भाई, लेकिन जो अगर पीर अफजल कादरी साहब ये फरमा रहे ने, एक मिनट भाई एक मिनट भाई एक मिनट। बिलाल साहब आप हैं? जी 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 इसकानी भाई। मैंने पहले क्या कहा था, आपने कहा हलीम ने और वो सरदार आला ने कहा है, मैंने कहा था कि वो ऐसा नहीं करते। मैंने कहा था अगर 1122 हो तो वो तो ज़रूर बिगाड़ेंगे बात को। आपने कहा वो नहीं था तो मैंने पहले आपको बता दिया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होगी बात। अब अपने दिल में ऐसी बात मत रखें। ये आसकानी भाई अगर क्योंकि मैं इन लोगों, मेरी बात सुन लीजिए, ये जितने भी साथी हैं सबको मैं जानता हूँ, सबकी बातें सुनता हूँ। तो हलीम इस तरह की हरकत नहीं करता, समझ रहे? मैंने पहले से यही कहा था। अब शुक्र है कि वो खुद आ गए। और ये करने वाला 1122 और उसके साथ 1-2 हैं, उनको छोड़ो, लेकिन ज़्यादा 1122 वो बात को बिगाड़ने और उसको काट कूट करने और इस तरह उस तरह वो मील में बड़े माहिर हैं। तो ठीक है, इस मसले को अल्हम्दुलिल्लाह खुद हलीम ने बता दिया कि ऐसा कोई बात नहीं। ठीक, ये आसकानी भाई ये बात मुझसे 7 से 10 दफ़ा पूछी गई है। अगर भाई बात ही खत्म हो गई ना, आप किसी के पास तो उसमें देख लिया जाए। ये 7 से 10 दफ़ा पूछी गई और 7 से 10 दफ़ा मेरा मौक़िफ़ देख लिया जाए उस पर। प्यारे भाई बात ही ख़त्म हो गई। इंसान से मुंह से निकल भी आता है या सुनने वालों को, लेकिन बात कंफर्म हो गई कि आपने बात की वजाहत की है, ख़त्म हो गई बात। इसमें क्या है? जी जी, इन्होंने वजाहत कर दी और हमने मान भी लिया। हमने कहा ठीक है, हो गया, हो जाता है, बंदे के मुंह से निकल जाता है और वो खत्म हो जाती है बात। कोई प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी नहीं है किसी तरह का भी। इसलिए ये पूरी बात मैंने ठीक है बिलाल भाई, इसको छोड़ दीजिए। बात जब क्लियर हो गई, जब गवाही आ गई, बात खत्म हो गई ना भाई, खत्म। छोड़ दीजिए इस मसले को, अपने दिल में कुछ नहीं रखिए। उनसे इसलिए पूछी गई है कि भाई आपने अगर वहाँ पर कोई इस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा किया है हमारे साथी के खिलाफ, तो वो बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर दें। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बात खत्म हो गई, मुर्तद की सजा कतल किन तलक आ जाए। नहीं वो बात ही अमर भाई बात ही खत्म कर दी। वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई। और मैंने पहले भी ये कहा था कि हलीम ऐसा नहीं करते। हाँ हलीम साहब और हरकतें करते हैं, इस तरह की हरकत नहीं करते। उनकी हरकतें और ये हरकत नहीं करते कम से कम। जी मैं पीरस्तानी साहब की बात तो पहली वाली नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे मालूम ऐसे हो रहा है कि पीरस्तानी साहब ने मेरे हक में कोई बात की होगी, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से जनाब मशकूर हूँ जनाब आपका। हाँ वो कह रहे हैं, पीरस्तानी भाई कह रहे हैं कि हलीम साहब इस तरह की हरकतें नहीं करते। मैं कह रहा हूँ इस तरह की नहीं करते, और तरह की हरकतें करते। हाँ जी, वही मैंने सुना है। तो मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा नहीं किया कि आपने अगली बात कर दी है। पीर साहब का इसलिए अदा किया कि पीर साहब ने चले मेरे बारे में एक अच्छी राय कायम की। हमारी और तो हड बीती है ना जी, कहते हैं जग बीती के हड बीती। हमारी तो हड बीती है ना जनाब। मैं ये कह रहा हूँ आज सब आगे जी, आओ आगे। वालेकुम सलाम, आओ आगे जरा जवेद साहब। आज जनाब हमने वो बात करनी है आपसे जो आज से पहले किसी मौलवी ने नहीं की होगी, कहीं से आपने सुनी नहीं होगी। आपके कई मुबल्लग, कई मुअल्लम, कई मुरब्बी दाएं बाएं कहते फिरते हैं ना, और इनकी बातों का हमने तब से जवाब दे दिया जब से ये पैदा ही नहीं हुए थे। हादी अली चौधरी ने किताब लिखी है और आपके कई मुसन्नफ मुरब्बी मुबल्लग कहते हैं इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। कत्ल तो दरकिनार, एक कोड़े की भी सज़ा नहीं है। हमने आज ये साबित किया है कि मिर्ज़ा साहब की तहरीर से साबित होता है कि मुर्तद की सज़ा कत्ल है। और हमारा मुसलमानों का ये मौक़िफ़
کہ نबी अलैहिस्सलाम की हदीस है मन बदल दीन हो फक्तुलू, ये दुरुस्त है कि जो दीन बदले उसको उसकी सजा कत्ल है। हाँ जी, अब हमने ये स्कैन भी लगाया हुआ है और ये स्कैन आपको बता देते हैं, नीचे हवाला भी लिखा हुआ है, इसको आप ले लें, इसका जवाब हमें ला के दें, जहां से चाहे ला के दें। रिसाला अल जिक्रुल हकीम नंबर 4। हाँ जी, और इसके अंदर क्या लिखा है? मैं तो पढ़ नहीं पा रहा इसको। मैं जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसको आप जूम करके पढ़ लेंगे तो पढ़ सकेंगे। मैं आपको खुलासा बता देता हूँ कि ये रसाला है डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का। इसमें मिर्ज़ा साहब ने उसके साथ जो खतो किताबत की थी, डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने वो खतूत शाया किए। ये किसका रिसाला है जी? डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का, जो मुर्ताद हो गया था। अच्छा, ये उसका रिसाला है, ठीक है। ये उसका रसाला है। 4 खतूत मिर्ज़ा साहब ने उसको लिखे हैं, 4 उसने मिर्ज़ा साहब को लिखे हैं। मिर्ज़ा साहब ने उसके खत का जवाब दिया, पहला खत उसकी तरफ से था, मिर्ज़ा साहब ने उसको जवाब दिया, फिर उसने जवाब दिया, फिर मिर्ज़ा साहब ने जवाब, ऐसे 4 खतूत का तबादला है तकरीबन। ठीक है। इन खतूत में से ये खत है जो दूसरे नंबर पर मिर्ज़ा साहब जवाब दे रहे हैं उसके खत का। उसमें मिर्ज़ा साहब ने उसको कहा है, डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को, कि भाई तुम्हारी नज़र में तो जो बंदे नबी अलैहिस्सलाम को गालियां देते हैं, इस्लाम कबूल नहीं किया जिन्होंने, ईसाई वगैरह, तुम्हारी नज़र में तो उनकी भी निजात हो जाएगी, वो भी नाजी हैं। और तुम्हारी नज़र में तो मुर्ताद जो हैं वो भी नाजी हैं। हालांकि इस्लाम ने मुर्ताद की सज़ा, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुर्ताद की सज़ा कत्ल है। ये अल्फाज है मिर्ज़ा साहब के, इनको आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये शाया किए हैं हकीम पटियालवी, मौलाना हकीम पटियालवी साहब ने। हाँ, इसके ऊपर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अदनान मतलूब साहब आए हैं, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो कहते हैं कि ये डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी तो मुर्ताद था, इसके रसाले को, इस रसाले को, ज़िक्रुल हकीम रसाले को या इन खतूत को हम औन नहीं करते। इसका जवाब ये दिया गया है कि इसी खतूत के सिलसिले में से, इससे अगले खत में से बशीर अहमद एम साहब ने कलमतुल फ़सल में इबारत नकल की है। मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी का मुंह बंद करने के लिए बशीर अहमद एम साहब ने इस खत से अगले खत जो हैं, 3-4 खतूत मैंने कहा, इससे अगले खत में से पैरा लेकर मौलवी मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को पेश करके बशीर अहमद एम ने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने, हमारे मसीह मऊद ने डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को खत में ये लिखा था कि खुदा ताला ने मेरे पर यह जाहिर किया है कि जिसको मेरी दावत पहुंची और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है। जी हाँ, ये बात मिर्ज़ा साहब की जो डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को लिखी गई थी, ये सवाई इन खतूत के और कहीं नहीं है। उसकी तरदीद आ चुकी है आपको शायद। मैं वो भी अर्ज करता हूं, आपको उसका भी, अगले केस का भी आपको पता ही है। हाँ, अगले केस का मुझे पता है, लेकिन ये इबारत मिर्ज़ा साहब की उस खत के हवाले से ही लिखी गई थी ना तज़किरा में। हाँ जी, जो 2022 तक तज़किरा के एडिशन में मौजूद रहा। अब 2022 में उन्होंने निकाल दिया, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने खुद भी अपनी हकीकत में भी जिक्र किया हुआ है। हाँ, मैंने डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को ये खत लिखा, मुझसे एक बंदा पूछ रहा है उसके बारे में। इसकी वैल्यू आप इसलिए बना रहे हैं इस रसाले की, चूंकि मिर्जा बशीर अहमद एमए साहब ने इधर से कोई चीज लेके कोट की है, इसलिए आप इसको हुज्जत बना रहे हैं हमारे लिए। हाँ, क्योंकि ये तो बात नहीं है, इस रसाले से उन्होंने खत लिया है। तो आप ये ना कहें कि ये रसाला या ये खतूत ये इनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। नहीं, इसके बावजूद भी ये अनऑथेंटिक ही रहेंगे। क्यों? अगर कोई बंदा कोई अहमदी, कोई मिर्जा बशीर अहमद एमए साहब हो, वो तारिक चौहान साहब हो, वो नज़ीर ए साहब हो, वो अगर रसाला ज़िक्र अल हकीम के किसी सफ़े से कोई चीज़ कोट कर दे तो दूसरे अहमदी इस वजह से उसको रसाला
ज़िक्रुल हकीम को मोतबर समझना शुरू हो जाएंगे? ये बात बनती नहीं है आमिर भाई। नहीं रिसाले को अलीम मोतबर ना साहब, इसमें समझें। एक और दलील भी यहाँ पे बनती है, वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी 85 किताबों में अभी तक हमें ऐसा कोई हवाला नहीं मिला जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि मुर्तद की सज़ा कत्ल नहीं है। इस तरह का कोई बयान नहीं उन्होंने दिया। तो हमारे पास बस यही एक तहरीर है जिसमें मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुर्तद की सज़ा कत्ल है। तो जितने लिटरेचर जमात ने लिखा हुआ है ना, ये मुर्तद की सज़ा कत्ल नहीं है के उन्वान से, उसमें उन्होंने मिर्ज़ा साहब की कोई तहरीर पेश नहीं की। इस बात अपनी उन्वान तहकीक पे से लिखा हुआ है, आपका मतलब है? उन्होंने मतलब कुरान की आयत से इस्तदलाल किया है और दूसरे मुसलमानों के उन्होंने हवाले दिए हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब का कभी उन्होंने ये हवाला नहीं दिया कि मिर्ज़ा साहब का भी यही कहना था कि मुर्तद की सज़ा कत्ल नहीं है। ऐसा कोई हवाला मैंने मिला। एक मुझे और बात बताएं, चले बात आई, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो भी आप लोगों ने आज टॉपिक शुरू किया, बड़ा दिलचस्प है और हवाले भी बड़े दिलचस्प है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मिर्ज़ा साहब की अपने हाथ की लिखी हुई तहरीर जिसको शाया भी जमाती लिटरेचर में वो मौजूद हो और शाया भी वो इसी जमात के ज़ेरे निगरानी शाया भी हुई हो, वहां से आपको मिलती है कोई ये तहरीर इस खत के अलावा? नहीं, यानी मुर्तद की सज़ा कत्ल है, मिर्ज़ा साहब ने कहीं और ऐसी तहरीर नहीं मिली हमें। नहीं लिखी, ठीक होगी बात। ये भी नहीं लिखी कि मुर्तद की सज़ा कत्ल नहीं है और ये भी नहीं लिखा कि मुर्तद की सज़ा कत्ल है इस एक खत के अलावा, जो कि ये खत मिर्ज़ा ये अब्दुल हकीम पटियालवी साहब ने ही छापा अपने अखबार में। हाँ जी, और दूसरी बात, एक बात इसमें ये भी है कि मकतूबात अहमद में तमाम खतूत जो मिर्ज़ा साहब ने लिखे और उनको लिखे गए उसके तो सारे मौजूद हैं, लेकिन अब्दुल हकीम पटियालवी के साथ उनकी खतो किताबत हुई है उसको महफूज नहीं किया गया। जी हाँ। लेकिन बशीर अहमद एम साहब ने जब उनको मतलब चाहिए था हवाला, तो उन्होंने ज़िक्रुल हकीम से हवाला लगा दिया अपनी बात साबित करने के लिए। हाँ जी, मिर्ज़ा बशीर अहमद एम साहब की ये वाली जो उन्होंने ये काम जो है, ये बाहर वाली जस्टिफाई तो नहीं करता ना कि सारे अहमदी वहां से हवाला लेके उसको मोतबर तरीन समझे? नहीं, कोई मसला नहीं है। देखने की बात ये है, अगर जो मजबूत दलील हो सकती है कि मिर्ज़ा साहब के लिटरेचर में उनके हाथ से लिखी हुई आपके पास कोई चीज हो जिसमें मिर्ज़ा और छपा भी वो जमाती छत्रछाया में छपी हो कोई ऐसी किताब या ऐसा फिक्रा जिसमें मिर्ज़ा साहब ने ये कहा हो कि मुर्तद की सजा जो है वो कत्ल है, तो वो पेश कीजिए। भाई बात यह है अलीम साहब कि मिर्ज़ा साहब ने जा बजा मुर्तदों का जिक्र किया है और ये भी जिक्र किया है कि उन मुर्तदीन से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निपटे हैं। तोहफा गोल्डविया में सफ़ा नंबर 93 पे वो कहते हैं कि ऐसा ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक ख़तरनाक ज़माना पैदा हो गया था। कई फ़िरके अरब के मुर्तद हो गए थे, बाद ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, कई झूठे पैगंबर खड़े हो गए थे। तो इसी किताब के अगले सफ़े पे फिर इनका जिक्र किया है कि यही इब्तला हज़रत अबू बकर को पेश आया कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए और इर्तदाद अरब का एक तूफ़ान बर्पा हो गया, झूठे पैगंबरों का एक दूसरा तूफ़ान उसको कुव्वत देने वाला था। फिर इसी किताब के आगे सफ़ा 95 पे लिखा हुआ है कि ऐसे ही खुदा ने तमाम सहाबा के सामने हज़रत अबू बकर के कामों में बरकत दी और नबियों की तरह उसका इकबाल चमका। उसने मुफ्सदों और झूठे नबियों को खुदा से कुदरत और जलाल पाकर कत्ल किया। ये सारी बातें लिखकर एक क्रिश्चियन के सवाल का भी जवाब दे रहे हैं नूरुल कुरान में। वो क्रिश्चियन ने एतराज़ किया कि भाई मुर्तदों को आपने कत्ल किया, मुर्तद की सज़ा इस्लाम में कत्ल है। कहते हैं मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये क्रिश्चियन ये जिसने एतराज़ात किए हैं वो एतराज़ करता है कि वो मुर्तद जो खुद खूनी और अपने काम से सज़ा के लायक ठहर चुके थे बेरहमी से कत्ल किए गए। इसका जवाब मिर्ज़ा साहब ने ये नहीं दिया कि हमने या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्तदों को कत्ल नहीं किया, बल्कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं जवाब में
بھئی آپ کو یاد نہ رہا کہ اسرائیلی نبیوں نے تو شیر خوار بچے بھی قتل کیے، ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں تک نوبت پہنچی. کیا ان کی نبوت سے منکر ہو، یا وہ خدا تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، یا موسیٰ کے وقت خدا اور تھا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کوئی اور خدا تھا. یعنی مرزا صاحب نے الزامی جواب دیا ہے ان کو، یہ کہیں نہیں انکار کیا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدوں کو قتل نہیں کروایا، یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کو قتل نہیں کروایا. مرزا صاحب نے ان کو الزامی جواب دیے ہیں، کہیں انکار نہیں کیا. آپ سرچ انجن میں جا کے مرتدوں کا نام ماریں گے، آپ کو درجنوں نہیں 20-30 حوالے ملیں گے جہاں مرزا صاحب نے مرتدین کا ذکر کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا ذکر کیا ہے، لیکن کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں تھی یا مرتدوں کو سزا نہیں دی گئی، یہ کہیں نہیں کہا گیا. اور اس کے حق میں تائید میں ایک اور دلیل حکیم نور الدین صاحب کی ہے، جب وہ کہتے ہیں ان کو جو ان کے خیال میں خلافت کے منکرین تھے کہ میرے پاس خالد بن ولید کی طرح کے لوگ ہیں جو تمہیں مرتدوں کی سزا دیں گے. ہاں اچھا چوہان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہوا ہے عبدالحکیم پریالوی صاحب کو جو خط لکھا ہے؟ چوہان صاحب کا موقف میں بتانے لگا، میں بتاؤں گا ان کا موقف. آپ پہلے یہ پتہ کریں کہ اس دلیل کو توڑنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. میں تو ایک جو اصول کی بات آپ سے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر کسی رسالے سے، کسی صفحے سے، کسی کتاب سے کوئی ایک لائن کسی احمدی نے اٹھا کے اس کو کوٹ کہیں پہ کیا ہے تو وہ تو اس پہ تو وہی دلیل لگتی ہے عامر بھائی کہ یہ تو مخالف نے چھاپا ہوا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. یہ جو صفحے آپ کر رہے ہیں وہ اس میں 2 نمبری کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے کس سارے رسالے میں 2 نمبری کی ہو، کسی ایک مضمون میں کی ہو، یا کسی بھی صفحے پہ کی ہو. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں سے جو میٹھا میٹھا ہے وہ ہپ ہپ، وہ میں نے نہیں کیا. اگر وہ میں نے اس کو کیا ہوتا نا، اس کا استفادہ حاصل کیا ہوتا میں نے، تو آپ یہ مجھے کہہ سکتے وہ کسی ایک احمدی نے کیا ہے جو جن کا نام احمدی نہیں ہے، کسی ایک احمدی نے نہیں کیا، قمر الانبیاء اس کو آپ کہتے ہیں. جی 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 وہ ان میں مجھے تو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور مجھے ان سے، میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے ان سے ایک سے زائد باتوں پہ اختلاف ہے مرزا بشیر احمد ایم اے سے. ابھی جو میں کل ایک تحریر پڑھ رہا تھا، انہوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور ان کو وہ مجھے اختلاف ہے ان سے. وہ تو ایک تاریخی غلطی ہو سکتی ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے، وہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا. وہ تو مرزا صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں، تاریخی غلطیاں تو مرزا صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں. تو وہ تاریخی غلطیاں نہیں، انہوں نے تحقیق کر کے انہوں نے حوالہ جات کوٹ کیے ہوئے ہیں. تو میں تو ان کو بالکل نہیں مانتا. میں تو کہتا ہوں کہ وہ میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. وہ انہوں نے ایک غلط تحقیق ہے ان کی. اس کے مقابل پہ میرے سامنے جب وہ تحقیق آ گئی مرزا حکیم مولوی نور الدین صاحب کی، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا. تو میں وہ والی بات مانتا ہوں، یہ ان کی بات میں نہیں مانتا. وہ ٹھیک ہے، وہ تو ان کی ذاتی رائے تھی نا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا. یہاں وہ ایک بات ایسی کوڈ کر رہے ہیں جو مرزا صاحب کی بات ہے، وہ صرف کوڈ کرنے والے ہیں، وہ نقال ہیں. انہوں نے یہاں سے نقل کر کے اپنے مخالف کا منہ بند کر لیا. حوالہ دیا انہوں نے نیچے کہ میں یہاں سے نقل کر رہا ہوں. ہاں مولوی محمد صاحب نے حوالہ دیا، انہوں نے استفادہ حاصل کیا اس کتاب، اس رسالے سے، رسالہ الذکر الحکیم سے استفادہ حاصل کیا. ایسے کر لیں اس کو. اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انہوں نے اس رسالے سے کوئی چیز کوٹ کی اور اپنے مخالف کو جواب دیا، اور اپنے والد صاحب کی بات ہی کوٹ کی اور اپنے حق میں اس کو استعمال کیا. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں وہ میٹھا تھا نا. تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری جماعت جو ہے وہ پھر رسالہ الذکر الحکیم کو معتبر جانے، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو اون کرے، چونکہ بشیر احمد ایم اے صاحب نے اس کے ایک صفحے سے استفادہ حاصل کیا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ایسا کریں کہ آپ اس رسالے کو چولہے میں رکھیں، آپ وہ خطوط پیش کریں جو مرزا صاحب نے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو لکھے تھے. اس کا ایک جواب آ گیا ہوا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ریکارڈ میں ملے نہیں ہیں. نہیں، کس ریکارڈ میں نہیں ملے؟ جہاں پہ وہ خطوط جمع تھے نا جی، ادھر سے وہ صاحب نے، میری بات سنیں، مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کو جو خطوط لکھے ہیں ان کا کیا ریکارڈ ہوتا تھا؟ کیسے ریکارڈ کرتے ان کو رکھتے تھے؟ ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی الماری کے اندر تو رکھتے ہوں گے. یہاں وہ مکتوبات احمد میں تو چھپائی ہوگی ان کی. دیکھیں جو خط انہوں نے لکھ دیے وہ تو چلے گئے،
भाई मकतूबात अहमद तो बाद में जमा हुए हैं ना खतूत, मिर्जा साहब ने खुद तो नहीं ना मकतूबात अहमद लिखा। ये वो जिनके पास खतूत थे फोटो कॉपी तो थी नहीं उस जमाने में आमिर नज़ीर भाई। हाँ वो दो जो वो अजरा शफकत और अजरा मोहब्बत और अजरा अकीदत वो लोग खतूत वापस लेके आए, बहुत वो अच्छे, खतूत जमा हुए। बहुत अच्छे। वो ऐसे ही है। खतूत जो मिर्जा साहब ने अपने मुरीदों को लिखे थे, मसलन रुस्तम खान को लिखा, नवाब मोहम्मद खान मलेर कोटला को लिखा, इसको ख्वाजा हसन मरोई को लिखा, या इस तरह किसी ख्वाजा कमालदीन को लिखा, वो तो हो गए हकीम नूरदीन के खतूत हैं, वो तो हो गए। अजरा शफकत मुरीदों ने खुद पेश कर दिए कि ये हमें मिर्जा अजरा साहब, मोहब्बत वो तो हो गए ठीक। अब अजरा शेख बटालवी ने तो अजरा शफकत नहीं ना देने थे खतूत। जी हाँ, मिर्जा साहब के 1887 के 3 खतूत शेख बटालवी के नाम वो मकतूबात अहमद में दर्ज हैं। शेख बटालवी ने तो नहीं दिए। बात वैसे आपकी दिलचस्प है, इसमें वजन है, ये बात मिर्जा आपकी साहब मानने वाली का है। बदतरीन मुखालिफ था। हाँ, इस बात में आपकी वजन है, ये बात ठीक है आपकी। हाँ ये बात आपकी ठीक है। अगर इस नजरिए से देखा जाए को जो खतूत लिखे जा चुके हैं और चले भी मुखालफीन के पास गए और वो बंदे या बंदा बाद में मुनकर हो गया, हाँ वो तो उनको वो खतूत नहीं देगा और ना ही उनसे वो खतूत का शायद मुतालबा किया जाएगा। तो वो खतूत तो रिकॉर्ड में नहीं होंगे। हाँ तो वो खतूत को हासिल करने का सोर्स एक ही है कि वो बंदा जो है वो या तो वो खतूत ओरिजिनल शक्ल में पेश करे साइन के साथ, हाँ, या तो वो खतूत पेश कर दें, या ये खतूत आपके मिर्जा साहब के हैं। ये बात उनको आपकी ऑन ठीक करें। है, ये बात आपकी वजन है इस बात में। ये बात अब मैं अगर इस तरह सोचूं ना इसको कि हकीम पटियाल ये इन्होंने अब्दुल हकीम पटियालवी ने ये जो खत है ये वापस तो नहीं दिए और मकतूबात अहमद में वो शामिल भी नहीं हुए और वो जमात के रिकॉर्ड में होने भी नहीं थे, ये बात तो ठीक है। अब लेकिन इसका एक हल है। ये अब्दुल हकीम पटियालवी साहब ने कहीं पे वो खत उसी हालत में उसी राइटिंग में साइन के साथ छापे हैं? समझ नहीं आई बात। वो खत जो था वो किसी सफ़े पे लिखा होगा, कलम से लिखा गया होगा, उसके नीचे सिग्नेचर होंगे। हाँ हाँ, ये जो है ना आपके सामने सफा लगा हुआ, यहाँ पर मिर्जा साहब के सिग्नेचर तो नहीं होते, लेकिन बकायदा कलम ये खुद। तो टाइपिंग है ना जी, नहीं, हाँ, स्कैन तो होता ही नहीं था, टाइपिंग ही होती थी उस जमाने ये में। तो टाइपिंग है। लेकिन अगले नहीं, उस जमाने में स्कैन छपते थे उस जमाने में या उसके बाद उनके पास तो रिकॉर्ड में मौजूद होंगे। नहीं, उस जमाने में कोई स्कैनिंग सिस्टम नहीं था, बाद में स्कैन सिस्टम निकला है। मैंने कुछ पुरानी किताब में अक्स देखे हैं कुछ चीजों के, नहीं, वो थोड़ी देर बाद में आगे होंगे वो कुछ कोई बाद में लिए गए 40 साल बाद फोटो कॉपीज है ना, फोटो कॉपी वो बाद में छपे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। ये देखें, जो बात मानने वाली वो बात मैं मान रहा हूँ। हाँ अब इसका हल पता क्या है आमिर नज़ीर भाई? जी। इसको अगर ईमानदारी से अगर देखें और सोचें, वो हल ये है कि ये जो तहरीर खुद टाइप की हुई है ना, इसको मानने से तो जमात और हम तो इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक मुखालफ ने छापी है। वो इस तहरीर में गुंजाइश मौजूद है कि वो अपनी मर्जी के अल्फाज शामिल करे, जो बंदा टाइपिंग कर रहा है या जो बंदा मालिक है इस छपाई खाने का या जो बंदा छाप रहा है या जो बंदा छपवा रहा है, वो इसमें खयानत करने के चांसेस मौजूद हैं। हाँ, एक चीज हो सकती है, जो एक चीज का आपको पता है, अगर तो वो चीज ओरिजिनल हालत में है उसको अब वो सामने पेश किया जाए कि ये देखिए ये नीचे साइन है और इसको आप फ्रांसविकर वाले इसको मैंने तब्दील नहीं किया, ये सनद के तौर पे वो पेश कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर उसमें है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जमात या मैं ये कोई बंदा भी उससे पीछे हट सकेगा। ये मुतालबा जो आप कर रहे हैं ना, ये ऐसा गंभीर मुतालबा है कि आपको भी पता है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी भी नहीं रहा, उसका कुतुब खाना और उसका लिटरेचर भी हमारे पास नहीं है। अब हमने यहीं से अखज़ करनी है, जो सच्चाई है उसको निकालना है, खोजना है। देखें, नहीं, दूसरे है कि एक बात मैं अभी कह दूं कि जो मैंने ये पढ़े हैं ना खतूत, इसमें मिर्ज़ा साहब की झलक है, यानी उनका जो अंदाज लिखने का था ना वो बिल्कुल वैसे ही है। और वो जो यहाँ से कॉपी किया गया है, रेफरेंस लिया गया है बशीर अहमद अहमद साहब ने, वो भी उसी ख़त में से है जो इन्हीं खतूत में मौजूद है। इसका मतलब है कि वो मिर्ज़ा साहब की ही राइटिंग है। मुर्ताद की सज़ा उन्होंने की, कहा है अल्लाह ताला फरमाता है। और जैसे आपने नूरुल हक का भी वो दिया हवाला, उसमें भी उन्होंने उस वक़्त मौका था वो कह देते कि हालांकि इस्लाम में मुर्ताद की सज़ा कत्ल नहीं है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने भी ये मेंशन किया, बल्कि उन्होंने डिफेंड किया उनको
کہ جن کو قتل کیا گیا تھا ان کو قتل کرنا ہی چاہیے تھا. جی جی طارق چوہان صاحب لیکن آپ بنیاد سے ہٹ رہے ہیں نا, آپ جڑ کو چھوڑ کے اوپر جا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کہیں سے نقل کی گئی ہو اور کی بھی مخالف نہیں ہو اور اس میں خیانت کا عنصر موجود نہ ہو یا اس کی گنجائش موجود نہ ہو؟ یہ کہہ دینا کہ اس میں یہ کہہ رہا ہوں مان لیا خیانت جائے, کا عنصر, یہ کہہ دینا. اب دیکھیے, اب آج کی دنیا میں بھی اگر آپ نے کوئی چیز کسی کو پیش کرنی ہے تو آپ تو آج تو اٹیسٹیشن کرتے ہیں نا جی, ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ اوریجنل چیز موجود ہے, فوٹو کاپی میں بھی آ گئی ہے, مور لگتی ہے, ہاں بھائی فوٹو کاپی ٹھیک ہوئی ہے, اوریجنل نال دی فوٹو کاپی ہے. اگر تو یہ چیز آپ منوانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے, یہ تحریر اور ساتھ میں اس کا عکس ہو, نیچے سائن ہو کہ ہاں جی یہ خط تھا میرے پاس. کیوں مخالف ہے نا جی, وہ مخالف ہے, تو اس لیے ساتھ میں عکس لگا ہو, ساتھ میں تصویر ہو, ساتھ میں یہ لکھا ہو. یہ رائٹنگ مرزا صاحب کی نہیں ہے, یہ آپ نے غلط فکرہ بولا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی رائٹنگ ہے. نہیں, یہ رائٹنگ کسی اور کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو لکھنے کا انداز ہے وہ مرزا صاحب, لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے نا, یہ کمزور بات ہے, یہ کمزور بات ہے. نہیں, اس سے مضبوط بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں کہ وہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے. کسی کتاب میں یہ بھی نہیں لکھا کہ مرتد کی سزا قتل ہے. نہیں, جیسے آپ کو حوالے دیے ہیں جہاں پہ یہ حوالہ جو ہے یہ آپ کہیں کسی بھی کورٹ آف لا میں کسی بھی مناظرے میں پیش نہیں کر پائیں گے. یہ بات سمجھنے کے لیے, ماننے کے لیے, اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, یہ کوئی بات بندہ سمجھ لے اس کو ٹھیک, کوئی بندہ نہیں ٹھیک سمجھے, اسی حد تک ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں نا, ایک عیسائی اعتراض کر رہا ہے کہ جی حضرت ابو بکر نے وہ قتل کیا مرتدوں کو, تو مرزا صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے غلط کیا. تو مرزا صاحب کے پاس سیاہی کی کمی تھی کیا, وہ آگے نہیں سکتے تھے؟ علیم بھائی وہ مرتدوں کو تو قتل نہیں کیا تھا نا بھائی, وہ وجہ صرف مرتد ہونے وجہ نہیں تھی. ایک وقت کے لیے طارق چوہان صاحب کی بات آپ مان بھی لیں تو مرزا صاحب کے پاس کیا سیاہی کی کمی تھی یا تھکاوٹ تھی کہ وہ اگلا فکرہ نہیں لکھ سکتے تھے؟ تو ضرورت نہیں تھی نا لکھنے کی, جب وہ پتہ ہی لگ رہا ہے کہ وہ نہیں جی, پر بہت ضرورت, اس سے ضروری کیا, اس سے ضروری اور کام اس وقت تھا کیا؟ یہ جو وہ موضوع چل رہا ہے اور ایک اپنا فکرہ ڈال کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا, اس سے ضروری ہو کیا سکتا تھا؟ اور نہیں, ظاہر ہے اس وقت یہ موضوع نہیں تھا کہ مرتد کی سزا قتل ہے یا نہیں ہے. مرتد کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, سوال یہ تھا کہ مرتدوں کو قتل کیا گیا آپ کے دین میں, تو وہ اس کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. ہاں جی, ہاں جی, اور لکھتے کہ ہاں بھائی میرا بھی یہ مقصد ہے, بات ٹھیک ہو جائے تھی, تو نہیں لکھا نا, نہیں لکھا. وہ اس کی ضرورت اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ موضوع نہیں تھا کہ مرتد کی سزا قتل ہونے کا موضوع بن جاتا. ہاں, یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں جہاں انہوں نے ذکر کیا ہے وہاں پہ انہوں نے یہی نہیں لکھا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے. اور ایک اور حوالہ ان کا یہ ہے کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا نبی ہے وہ واجب القتل ہے, یہ ان کا ملفوظات میں حوالہ ہے. تو یعنی اس طرف ان کا کوئی رجحان تھا یہ لگ رہا ہے. اور چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی ابھی تک کوئی ایسی تحریر نہیں آئی جس میں مرزا صاحب نے صاف الفاظ میں کہا, وہ والا بیانیہ پھر کہاں پہ جائے گا کہ انگریز کا خود کا کاشت کیا ہوا پودا ہے اور یہ اس طرح کی سزاؤں سے, مرتد والی سزا سے اور یہ جہاد سے مرزا صاحب جو ہیں وہ تو ہٹانے کے لیے آئے تھے. یہ بیانیہ کہاں جائے گا؟ تو مرزا صاحب نے خود کہا ہے وہ کہ وہ میں آپ نہیں, تو بیانیہ کہاں پہ گیا ہمارا نا کہ وہ مرتد کی جو سزا ہے یہ قتل شتل, اس پہ مرزا صاحب جو ہیں وہ امت کو باز کرنے کے لیے انگریز نے پلانٹ کیے تھے, وہ بیانیہ کہاں جائے گا؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بڑا گہرا تعلق ہے. نہیں, وہ جہاد والی بات کو آپ مکس اپ کر رہے ہیں, وہ جہاد والی بات اور مرتد والی بات بھی ہے. نہیں, مرتد کے بارے میں, اچھا, انگریز نے کہا کہ جو مطلب مرتد ہو جائے, اسلام چھوڑ دے, عیسائی ہو جائے, اس کو قتل کر دو, تو جہاد نہیں کرنا. وہ بات مرزا صاحب کی ٹھیک ہے. مرزا صاحب کا جو یہ بیانیہ ہے نا کہ جو بندہ عیسائی ہو جائے, جہاد کو منسوخ نہیں کیا, یہ آپ مرزائیوں کو بھی غلط فہمی ہے. نہیں, میں بیانیہ کی بات کر رہا ہوں بھائی, مخالفین کے بیانیہ کی بات کر رہا ہوں. جہاں تو پھر دونوں میں سے ایک بیانیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا نا. نہیں, جہاد ایک اور چیز ہے, مرتد کی سزا قتل ہونا ایک اور چیز ہے. وہ اب دونوں یعنی کہ اب میں یہ سمجھاؤں کہ جو انگریز تھا اس نے جہاد کے جو آپ کا نہیں چوہان صاحب لیکن غیر احمدی جو حضرات ہیں, ان کا جو یہ بیانیہ ہے کہ جہاد کے خلاف مرزا صاحب کو پلانٹ کیا گیا تھا جہاد کے رد کے لیے, وہ تو ٹھیک تھا. لیکن جو مسلمان عیسائی ہو اس کو قتل کر دو,
ओके था अंग्रेजों के लिए। ये पता नहीं इन्होंने आप चेंज नहीं उसको करवाया मिर्जा साहब कैसे का। मिला रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं आपको समझा देता हूँ ना, देखें अब मिर्जा जो मुसलमान थे वो जिहाद को जायज समझते हैं, जिहाद ठीक है। मिर्जा साहब को प्लांट किया गया। अब बात समझिएगा, गौर कीजिएगा, बरीक बात है, उम्मीद है समझ आ जाएगी। मिर्जा साहब को प्लांट किया गया ताकि वो जिहाद का रद्द कर सके। ये मिर्जा साहब ने लिखा है कि मुझे प्लांट किया गया। मेरे ख्याल में मैं मेरी नालायकी की वजह से मैं आपको समझा नहीं पा रहा। ना मैं मिर्जा साहब की हम बात कर मिर्जा रहा हूँ, साहब की तहरीर की बात करें, हम लोगों के ना इल्जाम मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं दोबारा 3 दफा मैं ये बात कह चुका हूँ कि फिर वो बयानिया कहाँ पे जाएगा। वो बयानिया को हम शब्द का बात आंसर- बयानिया की तो कर ही नहीं रहे कि लोग क्या कहते हैं। हम तो कह रहे हैं मिर्जा साहब की अपनी तहरीर की हम बात कर रहे हैं। मिर्जा साहब की अपनी कोई तहरीर नहीं है जो उनके हाथ से लिखी गई हो, जमात ने छापी हो, जिसमें उन्होंने कहा हो मुर्तद की सजा कत्ल है। दिखाइए, पेश कीजिए। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये उन्होंने मुर्तद की सजा कत्ल के जो जब उन पे एतराज़ किया गया तो उन्होंने उसका दिफा किया कि उनको कत्ल करना ठीक था। तो उसका मतलब ये निकला कि मुर्तद की सजा कत्ल है। मिर्जा साहब ने यही कहा है। हाँ, मेरा मतलब उससे ये अखज़ उसका किया ये जा सकता निजात है। निकला, कैसे निकला? अगर मुर्तद की सजा कत्ल ना होती और वो मिर्जा साहब समझते कि कत्ल नहीं है अगर- तो वो उसका दिफा क्यों करते? हाँ, वो कहते हैं अगर वो उन्होंने बिलफर्ज- गलत किया, हजरत अबू बकर ने गलत किया उस वक्त मुर्तदों को सजा दे के, ये प्यारे कहना भाई, चाहिए उनको। लेकिन उन्होंने उसका दिफा किया कि उन्होंने सही किया। हाँ जी प्यारे भाई, ये कायद में बनाने में और इसको मानने में बिल फर्ज अगर मगर इसकी गुंजाइश नहीं होती। अगर कहीं मिर्जा साहब ने ये लिखा है कि मुर्तद की सजा कत्ल है तो बिल्कुल पेश कीजिए। नहीं था ना, तो ना फिर- उन्होंने लिखा है मुर्तद की सजा कत्ल है इन अल्फाज में, ना लिखा है मुर्तद की सजा कत्ल तो नहीं है। फिर बात ही खत्म हो गई। हाँ, तो फिर क्या इसीलिए बात हम कर रहे ये बात पेश कर रहे हैं ना कि यहाँ आपको मुख्तलिफ तायीद में इसकी हमने तहरीरात बताई हैं जिससे भी ये लगता है, ये बात इस्टेब्लिश होती है कि ये बात इतनी क्लियर नहीं है। लेकिन तो की सजा क्लियर कत्ल नहीं है तो फिर इस पे आप अपना एक मुकदमा कैसे खड़ा कर सकते हैं किसी मुखालिफ की छापी हुई तहरीर से जो कि मिर्जा साहब के साथ की तरफ मंसूब की गई है? सीधी बात है, मंसूब की गई है। चले बताएं आप मुझे, ये मिर्जा साहब की तरफ मंसूब की गई। मैं कहता हूँ ये खत मिर्जा साहब का नहीं है। अब इसके खिलाफ आपके पास सिर्फ एक ही बात है कि जो इसका अगला खत था, इसका हवाला जो है मिर्जा बशीर अहमद साहब ने दिया हुआ है। काफी है ये? हाँ, ये काफी है आपके ख्याल में? अगर वो इसको ऑथेंटिक ना समझते कि ये खतूत वाकई मिर्जा मिर्जा साहब ने- बशीर अहमद साहब समझे ना समझे, मेरी तरफ से जो मर्जी समझे, वो मुझे सरोकार नहीं है उनके साथ। नहीं, वो मिर्जा कोई बशीर ऐसे अहमद बंदे की- हैं। मिर्जा बशीर अहमद साहब यार मिर्जा कोई- बशीर अहमद की किताब तो ओन करती है ना जमात, उनको मैं- अपना ऑथेंटिक लिटरेचर समझती है। वो तो- उनकी किताबें लिखी हुई हैं वो तो- islam.org पे वो पढ़ी तो हुई हैं। कुछ 600 बंदे की पड़ी हुई है वहां पे किताबें। हाँ, तो वो सारी बातों मेरा को वो ईमान मानते हैं लाना ना जरूरी है। जमात वाले। मिर्जा बशीर जो अहमद साहब को मानना मेरे लिए जरूरी है। आल इस्लाम डॉट मैं ऑर्ग नहीं पे मानता मिर्जा बशीर अहमद जो साहब को। पढ़ी हुई हैं किताबें, वो अगर जमात मैं का मौक़िफ़ ही है ना। अगर मैं ये भी कह दूं कि मिर्जा बशीर अहमद साहब से नालायकी हुई है तो मेरे ऊपर कोई हद नहीं लगती। मैं नहीं मानता उनको। ओ होश करके नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर मैं ये हम कह तो कहते हैं दूं, वो नालायक ही था, लेकिन मैं- आपसे उम्मीद नहीं थी। नहीं सुने ना, मेरे ऊपर कोई हद लगती है इस बात पे? मेरा कोई मैं हम कोई तो एम कहते भी हैं नहीं लेता। नाखल्फ औलाद थी मिर्जा साहब की, आपने थी? मान भी लिया आज। नहीं नहीं आप ठहर मिर्जा जो एक बशीर अहमद मिनट साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं, ये जो बात सुनने वाले गलत कर दोस्त रहे हैं वो भी कंफ्यूज ना हो। ये बात गलत- हम बात कर रहे हैं मिर्जा बशीर अहमद साहब की। हाँ, मैं हज़रत आपको- मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की हम बात नहीं कर रहे। मैं वही ये कह रहा बताने हूँ लगा हूँ अगर कि- उनसे गलती हुई, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने जो किया, लेकिन अगर किया भी तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। अगर उन्होंने ये काम गलत किया तो मेरे ऊपर कोई हद नहीं लगती। मुझे मेरे कोई ईमान में, मेरे कोई अकीदे में फर्क नहीं आता। भाई साहब बात तो सुन लेना, आप इसको इतना सिंपल ले रहे हैं कि जैसे बशीर अहमद साहब ने कोई बात कोड की है तारीखी हवाले से, मौरख थे, तो कोई उसमें गलती हो गई छोटी मोटी, हवाला गलत हो गया। ओ भाई साहब, आपका मुकदमा उन्होंने लाहौरियों से जीता है ये तहरीरें पेश करके। लाहौरियों का मुंह बंद किया है उन्होंने ये तहरीर पेश करके कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को हमारे मसीह मऊद ने लिखा था कि खुदा ताला ने मुझे पे जाहिर किया है, जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है।
یہ وہی تحریر ہے, اتنی ہی اتھینٹک تحریر ہے جس کو اٹھا کے جماعت نے 2022 میں باہر پھینکا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا, لہٰذا ہم اس کو آن نہیں کرتے. بھائی یہ جماعت آپ کا اگر مقدمہ میری بنا رہا بات ہے. سنیں، جماعت آپ کی اگر 100 سال بعد اگر اس طرح کی حرکات پر اتر آئے تو ہم جماعت کی کوئی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنا چاہتے. وہ جو کر رہے ہیں پھر میری بات پہ ابھی جو 2 دوستوں نے کہکا لگایا تھا, جنہوں نے آپ نے مجھے فرمایا تھا ہوش سے, تو پھر میری بات کی تائید جماعت نے 2022 میں کر دی, انہوں نے وہ تحریر اٹھا کے باہر پھینکی ہے. تو قمر الانبیاء کا سٹیٹس کدھر گیا؟ میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ان کو یہ سمجھوں کہ وہ اگر جماعت نے باہر پھینکی ہے تو حقیقت الوحی کو اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھینکا جماعت نے, جہاں پہ یہی بات لکھی گئی ہے جو مرزا بشیر الدین ایم اے نے لکھی ہے. ہاں اس کو کیوں نہیں اٹھا کے پھینکا حقیقت الوحی کو؟ یہ بھی نیگلیجنسی تھی. کیا علیم صاحب حقیقت الوحی کو اٹھا کے کیوں بول رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا آپ لوگوں کے پاس نا یہ بڑی کمزور دلیل ہے اور کوئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے. علیم صاحب آپ نے کہا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں مانوں کہ حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے ایک رسالے سے استفادہ حاصل کیا, لہٰذا اس رسالے کے پچھلے صفحے بھی ٹھیک ہے, اگلے بھی ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا اٹھا کے پھینکیں, تو حقیقت الوحی میں مرزا صاحب نے خود سوال نمبر 6 میں یہی بات کوٹ کی ہے. ان سے سوال پوچھا گیا ہے اس کے متعلق, بھائی انہوں نے اس فرق ہے کا بات جواب میں, دیا ہے. بھائی فرق ہے بات میں. فرق کیا ہے؟ فرق ہے نا, یہی بات مرزا بشیر احمد نے لکھی ہے. الہام منسوب کیا گیا ہے یہاں پہ. بات سادہ, یہ عامر نذیر صاحب کو کہیں ذرا دونوں لگائیں, وہاں پہ الہام کے الفاظ ہیں, خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے الہام کے الفاظ ہیں. اور فرق ہے بھائی, فرق ہے. نہیں, الہام کو تو لکھا تو ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو الہام لکھا تھا نا. میری بات سنیں, جس تحریر کو رد کیا نا جماعت نے, اور وہ اس کی جگہ پہ یہ لکھ دیا ہے کہ ہمیں یہ ریکارڈ سے نہیں ملا, اس میں وہ بات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو رہی ہے, اس کو رد کیا گیا ہے. اور وہی تحریر کا عامر نذیر بھائی ابھی حوالہ دے رہے ہیں. طارق چوہان صاحب ذرا غور کریں, اور جو افغانی ڈیزائن کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا. ہاں, بات تو وہی لکھی ہے نا حقیقت الوحی میں. لیکن فرق اب مان گیا, میرا فرق پتہ چل گیا فرق کیا ہے. اب اس کو غور کریں گے, بہت بڑا فرق ہے. ایک بات خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ بندہ اپنی طرف سے بات لکھ رہا ہے, اپنے خیالات لکھ رہا ہے. یہ فرق ہے بات میں. تو مرزا صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے یہ بات نہیں لکھی. مرزا صاحب اس کا جواب دے کے رہے لفظ وہاں پہ نہیں لکھا ہوا, لیکن انہوں نے کہ عبدالحکیم پٹیالوی کو آپ نے یہ خط میں یہ لکھا ہے. تو یہی بات ہے بشیر احمد نے لکھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں بشیر احمد کی بات تو ہم پھینک رہے ہیں ادھر سے, اور اس میں الہام کے الفاظ موجود ہیں. یہ اتنی سادہ بات ہے, مجھے نہیں پتا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے. آپ مجھے کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بات ہے, کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ مجھے کہ مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے ادھر سے ایک حوالہ لیا, اس کے پچھلے صفحے بھی ٹھیک ہے, وہ بھی مانو, اگلے بھی مانو. بھائی آپ تو حقیقت الوحی کی عبارت کو بھی جھٹلا رہے ہیں, جو مرزا صاحب نے ایک سائل کے خط کو کوڈ کیا ہے اور مرزا صاحب نے اس کو اون کیا, جھٹلایا نہیں. دکھائیے وہاں پہ خدا کی طرف منسوب کیا گیا وہ بات. خدا کی طرف کے الفاظ نہ ہوں, جو بات کہی گئی ہے وہ تو مفہوم تو موجود ہے. آنے بعد میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اگر جہاں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے نا, مجھے خدا نے بتایا ہے یا میری طرف الہام ہوا ہے, وہ بات کی اہمیت اور ہے. اور جہاں پہ مرزا صاحب نے 84 کتابیں لکھی ہیں, اس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, وہ بات. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں جب تک خدا حکم نہ دے میں بولتا ہی نہیں. یار کتوں شروع ہوئے ہو علیم صاحب, جی طاہر بھائی, علیم صاحب او ذرا نا طارق چوہان صاحب ذرا سیدھا کرو. یہ طارق چوہان صاحب مخالفاں نال رل جاندے نے, ساڈے نال بحثاں انہاں نے چوہان صاحب نے نا جڑے چوہان مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تو بول تاکہ تو پہچانا جائے. بولتے نے جڑے نے او پھر اتحاد دا جڑے نا لوکاں دے سامنے نہیں ہے. طارق چوہان صاحب سیدھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا تسی؟ نہیں چھڑ دے. طارق چوہان صاحب, چوہان صاحب دل دے کوڑے نہیں ہیں. انہاں دا بھی کل اس ویل تائیں ایہی موقف سی جڑا تہاڈا اج. آج مرزا صاحب دی تحریر ویکھیے, ان باتوں پہ نا غور کریں, مرزائی بن کے نہ سوچیں
ایک محقق کے طور پر سوچیں. یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی ہماری ایمان پہ کوئی سے فرق نہیں پڑتا. اگر مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے ثابت ہو جاتی ہے تو ہم مانیں گے اس کو. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اخبار تے خبر آ جائے گی جی عمر نے منا لیا انہوں نے. ہاں تو ہم مرزا صاحب کی بات کو آن کریں گے کیونکہ ہم نے ان کو حکم و عدل مانا ہوا ہے. ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے اس میں؟ آپ اس پہ غور کریں جا کے. یہاں پہ بحث کرنے کا مقصد نہیں